Hello students, welcome once again to the web classes. So today again we are going to have subject account unit number 5 of part 2. The name of chapter is accounting ratio and analysis for the 12th commerce English medium. Now so far we had completed profitability ratio, short term liquidity ratios and solvency ratios. Okay, so total we had completed 8 and 2 10 ratios. Now today we are going to see asset to debt ratio. Sorry, total we had completed how many? I think 6 to 7 ratios we have completed. Now today we are going to see the total asset to debt ratio. What is the name? Total asset to debt ratio. Now what is the meaning? Total asset to debt ratio shows the relation between total asset and non-current liabilities. Out of total asset, proportion of assets acquired by debt कैन बी असरटेन फ्रॉम दिस रेशियो. देखो इसका फॉर्मूला कितना सुंदर सा है. ठीक है, टोटल असेट टू डेट रेशियो इज इक्वल टोटल असेट ऊपर और डेट नीचे. ठीक है, मतलब टोटल असेट हम ऊपर लिखेंगे और लॉन्ग टर्म डेप्ट, हाँ शॉर्ट टर्म नहीं, कौन सा लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नीचे लिखेंगे. इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल असेट में जो भी है कितना प्रोपोर्शन जो है वो डेप्ट का है ये हमें पता चलेगा. नाउ टू determine the total asset, non-current asset are not to be to determine the total asset, other current assets are not to be considered. other non-current asset, ठीक है, क्या कंसिडर नहीं करना है? तो अदर नॉन करंट असेट नॉट टू बी कंसिडर्ड, बाकी सारे कंसिडर करना है. एग्जांपल, ट्रेड रिसीवेबल्स of more than 12 month expense not written off, etc. To determine the debt, non-current liabilities are to be considered, but other long term liabilities are not to be considered. मतलब दोनों में ही, asset में और liability में, दोनों में other non-current asset और other non-current liability जो है वो consider नहीं करनी है. Clear? Now objective क्या है? So objective, it can be ascertained that out of total asset what proportion of total asset is acquired through non current liabilities. ट्रेंड क्या है? so there is no standard measure, मतलब इसका कोई ट्रेंड नहीं है, जिस कंपनी की जैसे इच्छा हो वैसा रख सकता है. ठीक है, नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 19 देखिए. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ यू लिमिटेड कैलकुलेट टोटल असेट टू डेट रेशियो. Now share capital is given 30 lakh, reserves and surplus is given 5 lakh, non-current liabilities are given 10 lakh, okay, current liabilities are given 5 lakh. तो क्या नहीं दिया है? टोटल असेट नहीं दिया है, टोटल असेट नहीं दिया है. तो टोटल असेट ना दिया हो तो कैसे फाइंड करोगे? टोटल असेट ना दिया हो तो मतलब होता है शेयर कैपिटल, मतलब शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी, क्योंकि लाइबिलिटी साइड का टोटल और एसेट साइड का टोटल सेम होता है. तो अगर आप इन सभी का प्लस कर दोगे तो दैट वुड बी इक्वल टू टोटल असेट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, नाउ द फॉर्मूला इज टोटल असेट टू डेट रेशियो इज इक्वल टोटल असेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेप्ट. नाउ टोटल असेट not given, but all items of equity and liability sides are given. Thus the total of equity and liability side is the total of asset side. So इसका अगर हम टोटल करते हैं, इक्विटी शेयर, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज, सो टोटल इट बिकेम 50 lakh rupees. Now the non current liabilities are of rupees 10 lakh. So आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ 50 lakh डिवाइडेड बाई 10 lakh इज आंसर 5:1. इसका मतलब क्या है कि 5 रुपए के एसेट में से 1 रुपए का एसेट जो है वो लाइबिलिटी में से लिया गया है. ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटी में से लिया गया है. ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इज 20. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ डीवी कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो. क्या क्या दिया हुआ है? नॉन करंट एसेट इज गिवन, ओके. accumulated depreciation and fixed asset is given, okay, depreciation minus हो जाएगा. current assets are given 5 lakh, equity share capital is given, reserves and surplus are given, total liabilities are given and current liabilities are given. so easy. ठीक है, टोटल एसेट कैलकुलेट करो और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कैलकुलेट करो, जिसमें टोटल लाइबिलिटी है 7 लाख, जिसमें से करंट है 1 लाख. 7 - 1 तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मिल गई ना, नॉन करंट लाइबिलिटी.
नाउ दिस इज द फॉर्मूला, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। नॉन टोटल एसेट, तो टोटल एसेट का मतलब क्या हुआ, नॉन करंट एसेट माइनस डेप्रिसिएशन प्लस करंट एसेट। तो टोटल एसेट हो गया हमारे पास 30 लाख और डेप्ट हो गए हमारे, टोटल लाइबिलिटी दी थी उसमें से माइनस किया 6 लाख। नाउ 30 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख, दैट इज आवर आंसर। सो हमारा आंसर हो गया 5:1। अगेन सेम आंसर 5:1। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 रुपए के एसेट में से 1 रुपए का एसेट लाइबिलिटी में से लिया गया है। नाउ प्रोप्राइटरी रेशियो, द नेक्स्ट रेशियो इज प्रोप्राइटरी रेशियो। होपफुली पीछे वाले रेशियोज आपको कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर कंप्लीट हो चुके हैं, सो डू वन थिंग, पॉज दिस वीडियो एंड सॉल्व 2 इलस्ट्रेशंस राइट नाउ। ठीक है, उसके बाद आगे का देखो। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लिखो और दोनों ही इलस्ट्रेशन जो मैंने सिखाया आपको वो सॉल्व कर दीजिए, तो 50% काम आपका यही हो जाएगा। द नेक्स्ट इज प्रोप्राइटरी रेशियो। सो प्रोप्राइटरी रेशियो शोज रिलेशन बिटवीन टोटल एसेट एंड ओनर्स फंड। तो टोटल एसेट और ओनर्स फंड के बीच का रिलेशन शो करता है क्या, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल ओनर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। ओनर्स फंड में क्या क्या आते हैं, तो ओनर्स फंड में आता है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। ऑब्जेक्टिव क्या है, दिस रेशियो शोज व्हाट प्रपोर्शन ऑफ टोटल एसेट इज एक्वायर्ड बाय ओनर्स फंड। ये रेशियो शो करता है कि टोटल एसेट में से कितना एसेट जो है वो ओनर फंड से लिए गए हैं। ट्रेंड, सो इसका भी कोई स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं है, ध्यान रखिएगा। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 21, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा हेडलाइन। नाउ सी, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एम लिमिटेड कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। ओके, प्रोप्राइटरी रेशियो फाइंड करना है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो फाइंड करने के लिए हमारे पास ये क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन दी है। तो शेयर होल्डर्स फंड और रिजर्व्स एंड सरप्लस, अगर इतना आप प्लस करोगे तो ये हो गया ओनर्स फंड। ओनर्स फंड कितना हो गया, 45 लाख डायरेक्टली। ठीक है, और टोटल एसेट दिया हुआ है 70 लाख। तो दोनों ही इंफॉर्मेशन हमारे पास बैठे बिठाई है। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ये रहा ओनर्स फंड और ये रहा टोटल एसेट। हालांकि यहाँ पे फिर से कैलकुलेशन किया गया है, फिर से कैलकुलेशन करना नहीं चाहते। देखो 45 लाख आया और यहाँ पे भी मैंने क्या कहा, ये रहा 45 लाख, ये है ओनर फंड। तो अगर कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो सो डायरेक्टली यू कैन डू। तो इस तरह से हमने आंसर्स लिखे और मतलब वैल्यूज रखी और हमारा आंसर आता है 0.64। मतलब 1 रुपये का अगर एसेट है तो उसमें से 64 पैसा 0.64 जो है कहाँ से एक्वायर किए गए हैं, ओनर फंड से एक्वायर किए गए हैं। ओके, नाउ होपफुली ये रेशियो भी समझ में आ गया होगा। तो राइट डाउन द इंफॉर्मेशन ऑफ रेशियो, पॉज द वीडियो ऑन एंड सॉल्व दिस इलस्ट्रेशन। ठीक है, होपफुली आपने सॉल्व कर लिया होगा। नाउ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सो व्हाट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। दिस रेशियो shows the relation between earning before interest and tax and the interest on long term debt. This ratio shows the earning capacity, thus it is calculated in terms of time. तो ये रेशियो जो है वो टाइम में कैलकुलेट किया जाता है। फॉर्मूला क्या है इसका, सो फॉर्मूला इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। क्या, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इंटरेस्ट और टैक्स भरने से पहले जो अर्निंग है वो डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। लॉन्ग टर्म डेब्ट मतलब क्या क्या हुआ, तो डिबेंचर होता है, बैंक लोन होता है, एटसेट्रा। नाउ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे फाइंड करोगे, तो अगर आफ्टर टैक्स की अर्निंग दी है तो उसमें टैक्स प्लस कर दो और इंटरेस्ट प्लस कर दो। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव ये बताता है कि कितने बार, हाउ मेनी टाइम्स कंपनी कैन पे इंटरेस्ट फ्रॉम द प्रॉफिट। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स कंपनी कैन पे इंटरेस्ट फ्रॉम द प्रॉफिट, दिस इज द ऑब्जेक्टिव। ट्रेंड, इसका कोई ट्रेंड नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर रेट करें तो दिस रेशियो इंडिकेट द इंटरेस्ट पेमेंट कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। हायर द रेशियो हायर द पेमेंट कैपेसिटी, लोअर द रेशियो लोअर द पेमेंट कैपेसिटी। क्लियर। सो होपफुली ये आप लोगों ने फॉर्मूला देख लिया। फॉर्मूला देख लीजिए एक बार, फिर से याद कर लीजिए और बुक में लिख लीजिए। ठीक है, नाउ से इलस्ट्रेशन नंबर 22। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एन के कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। डिबेंचर है 10 लाख, उस पर 10% इंटरेस्ट, तो कितना हो गया 1 लाख। बैंक लोन है 30 लाख, उस पर 12% इंटरेस्ट, 12 3 36, 3,60,000। ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज गिवन
20,70,000। तो हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज गिवन। नाउ इंटरेस्ट, तो एक डिबेंचर का इंटरेस्ट हो गया 1 लाख और बैंक लोन का इंटरेस्ट हो गया 3,60,000। टोटल इंटरेस्ट 4,60,000। सो 4,60,000 और दोनों वैल्यूज हैं हमारे पास। फॉर्मूला हमने लिख दिया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। नाउ सारी वैल्यूज हमने सब्सटीट्यूट की। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाज गिवन, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज पे इंटरेस्ट 4,60,000, आंसर इज 4.5 टाइम्स। मतलब कंपनी इज हैविंग 4.5 टाइम्स कैपेसिटी टू पे इंटरेस्ट फ्रॉम द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ नाउ इधर देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ आरजे कंपनी कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज गिवन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें कौन सा चाहिए? बिफोर टैक्स। टैक्स एट द रेट ऑफ 30% इज गिवन 4,50,000। तो ये 4,50,000 इसमें ऐड कर देंगे और 10% लोन दिया है, तो 10% लोन है 50 लाख का 10% होता है 5 लाख, तो इंटरेस्ट भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फाइंड कर रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज गिवन 10,50,000, टैक्स ऐड कर दिया 4,50,000 और इंटरेस्ट भी ऐड कर दिया, तो टोटल हमारा हो गया 20 लाख प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, और इंटरेस्ट तो हमने फाइंड कर ही लिया था 5 लाख। ये हमारा फॉर्मूला इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। नाउ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 20 lakhs, okay, and interest is 5 lakh, so answer is 4 times, means company is having 4 time capacity to pay the interest. okay, so आज के लिए इतना ही। अगर ये समझ में आ गया हो तो आपका होमवर्क होता है इलस्ट्रेशन 23 तक कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और सम नंबर 14 तक कंप्लीट होना चाहिए, वो भी 2 टाइम्स। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।